Do you have this periodic table in your book? This is the long form of the modern periodic table. It has all the 118 elements. Long form means everything included. Short form पहले हुआ करता था, and then you can say this is the long form. Yes, it is the most updated, relevant periodic table, which consists of all the elements segregated, grouped properly. I'll just remove this. ठीक है, इसी को अपने को स्टडी करना है. We have to study this. So you understood the whole process. How did this become, right? इसके पहले की history क्या है? How elements were discovered slowly, and then there was a need of arranging and organizing those elements in a proper way so that they can be understood, their properties can be studied in a easier manner. So everybody tried their best to arrange the elements known at that time, and the process evolved from Dobereiner to Newland to Mendeleev to the Moseley, that is the modern scientists, and finally they were ready to express all the knowledge in one form of the periodic table, which is the long form of your periodic table. So for from now on, for any future reference, you are going to refer to this table. This is your go-to information chart for any uh, you know anything which is you have query about any element, their atomic numbers, the mass number, the position, the characteristic. You can find it over here. No other periodic table will be valid, only this one will be valid. Okay? Now there are certain things which are discussed in this part. First is the periodicity. Now, what do you understand by the term periodicity? Periodicity का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term periodicity? The intervals. Ohm? Which the elements are. No. Ohm? Where are the equal intervals? Show me. When you study something, na, ask yourself questions. अभी तुमने पढ़ा ही, right? You saw the video. ठीक है, किसके लिए? प्रिंटर का मैंने सॉफ्टवेयर नहीं डाला, तो उसको बोल कल ले लेना. हाँ, मैं भी कर दूं, मैंने ग्रुप में भी किया है, उसको बोलना कल प्रिंट आउट ले ले. नो प्रॉब्लम. So whenever you read something, you come across some new word, find its meaning. That is very important. You know the word of periodicity is occurring so many times, so you have to find the meaning. इसका meaning लिख लो अगर तुम्हें नहीं पता है. Periodicity मतलब reoccurrence. Reoccurrence or repetition in properties. ये जो बार बार प्रॉपर्टीज रिपीट होती है ना, सेम प्रॉपर्टी वापस तुम्हें दिखेगी at regular intervals. Repetition in properties at regular intervals. इसी को बोलते हैं periodicity. ये पूरी चीज का एक सिंगल फ्रेज है जिसको बोलते हैं
ठीक है. Repetition in properties at regular interval is periodicity. So you see this repetition of properties of elements in the periodic table. And what are these properties? What are these properties? These properties are the nature of elements, whether they are metals or non-metals, the uh, melting points, the boiling points, the reducing property, oxidizing property, chemical properties. All these properties they repeat, or they show this periodic nature. They show periodicity. So it's very easy to classify the elements based on the properties. It's not difficult. If you see a certain group, in the particular group, all the elements which are occurring in that group, the properties will also follow them. They will also reoccur. Okay, so that is periodicity, and that is the highlight of the periodic table. Highlight of the periodic नाम periodic table क्यों आया है? या रिपीटेशन की वजह से प्रॉपर्टीज रिपीट होती है इसकी वजह से. जैसे कि यहाँ पे वो लोग ने एक ग्रुप का नाम लिया है फर्स्ट ग्रुप. Which is the first group? Can you see? Can you open your keep the periodic table open in front of you? Okay, I'm going to talk about the first group. Group number 1. Group. Remember that group is a vertical column. Group is a vertical column. Period is a horizontal row. There are how many groups? 18 groups and 7 periods. 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है पूरे पीरियोडिक टेबल. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है तुम्हें. फर्स्ट ग्रुप में तुम्हें ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा होगा. डू यू सी हाइड्रोजन? बट डू नॉट कंसिडर हाइड्रोजन बिकॉज उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है. ठीक है. इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन. विच इज द नेक्स्ट वन आफ्टर हाइड्रोजन? लिथियम. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Do you see all of them? They all have common properties. Now if you look at the periodic table number wise, the number of lithium is 3. Is it? Yes, sir. Then you go along the second period mein na lithium, right? And you again come back to the first group after moving across the second period, and the properties will repeat in the next element, which is sodium. So after all those elements, again you come back to the first group and the properties will reoccur, repeat. That is in the case of sodium. So sodium का atomic number क्या है? 11. Then comes atomic number 19, and who is 19? Potassium. Properties again repeat. So see, there is a repetition in properties at regular intervals. So what is this intervals? The intervals are the groups. Yeah, so the groups, there are 18 groups, but if you see the top part of the periodic table, in between there is an empty space. So after certain groups, again the properties repeated themselves. So like this, the properties will repeat in the first group for lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So what is this? What are these properties which are being repeated in the first group? All elements of the first groups are good reducing agents. Do you know what is a reducing agent? Reducing agents, they remove oxygen or they add hydrogen to any compound or element. Okay, so all these metals are good reducing agents. They form unipositive ions. What are unipositive ions? Unipositive ions means they have valency of 1 plus. लिखो, नोट करो, हाथ चलता रहना चाहिए. अगर नहीं पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वहां पे नोट करो अपनी लैंग्वेज में, तुम्हें जो समझ में आता है. Don't just listen, you will forget it very easily. Although you have learned it in earlier years, you will forget it this year and next year. Unipositive means having valency of 1 plus. तो तुम सीधा साइड में लिख सकते हो वैलेंसी 1 प्लस. यूनिपॉजिटिव वैलेंसी 1 प्लस. तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ये वाली? नहीं है. अरे कृष्णा खुल गया भाई, सारी दुकान खुल चुकी है. क्यों अमेजोन पे करना है? लॉकडाउन अभी रिलैक्स्ड है, तो यू कैन गो एंड बाय, सिंपली गो एंड बाय.
बट इट्स ओके इफ यू डोंट बाय, मुझे कोई इसमें ये नहीं है, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज सकता हूँ, बट कीप दीज नोट्स टुगेदर। मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ बिकॉज यू गाइज आर नॉट प्रोज एट कीपिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर। व्हेन इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड फ्रॉम यू, यू गेट लॉस्ट बिकॉज देन यू सी दिस बुक दैट बुक। इसलिए बोलता हूँ एक बुक खरीद लो, उसको फॉलो करो और वहीं पे ये सारी चीजें नोट कर लो पेंसिल से। इफ यू आर राइटिंग इन बुक, मेक श्योर दैट this information is available to you and you refer to it at regular intervals. Okay. So there should be a periodicity in referring the information also. Otherwise you will forget. केमिस्ट्री में यही है। अच्छा, सॉफ्ट मेटल्स, अब ये समझाने की जरूरत नहीं, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स। या यू नो सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ. Other metals are also not very strong. They might not be able to, you might not be able to cut them with a knife, but they are soft comparatively. They are very reactive and they are found in combined states only. Sodium, everybody knows sodium is a reactive metal. You know that? Have you seen those stupid people making videos on YouTube? हाँ, सोडियम को पानी में डाल दिया, ब्लास्ट हो गया, और फिर व्यूज और पैसा कमाते उससे। कैसे कमीने लोग हैं। अपन यहाँ पे इतना सिखा के भी कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो। ओके, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम व्हेन दे बर्न. सो सोडियम, it burns with a golden flame, as far as I remember. You can check the end of your book. विराफ दलाल है ना तेरे पास? विराफ दलाल में एंड में देख, शायद रहेगा, तुम्हारे पास भी रहेगा, पैसे दिए तो रहेगा ही। ठीक है, विराफ दलाल में लास्ट में देख, लास्ट में, ये नहीं, लास्ट पेज पे देख, फ्लेम कलर्स, फ्लेम कलर्स है लास्ट सेक्शन में। जो तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नाम का पार्ट है, उसमें देख फ्लेम कलर्स के फोटोज दिए हैं, अलग अलग फ्लेम के कलर के, दिख रहा है? सो कैन यू सी द फ्लेम ऑफ सोडियम फ्लेम? No, only one person they can check and they will find and tell you. अरे पीरियोडिक टेबल नहीं देखना है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री देखनी है, उसमें सारे पिक्चर्स दिए हैं. You will be able to see the pictures. गोल्डन येलो मिल गया उसको. ये तो तेरे को कौन सी बुक में मिला? उसी में मिल गया, देखो 147 देख, विराफ दलाल छोड़ दे, 147 देख अपनी बुक में. हाँ, डू यू फाइंड इन विराफ दलाल? पैसा नहीं दिया, फ्री में खरीदा क्या? इट्स देयर इन विराफ ऑल्सो. गुड, वेरी नाइस. सो यू अंडरस्टैंड ना कि दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम व्हेन दे बर्न गोल्डन येलो. दे फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं. एंड दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन. बेसिक ऑक्साइड्स, इसको याद रखना, ये सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए नहीं दिया है, इसको समझना, याद रखना. अब ये सिर्फ सोडियम का नहीं है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मतलब सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप में, दे ऑल इम्पार्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स टू द फ्लेम व्हेन दे बर्न. सो दैट इज देयर नेचर. और ये नेचर सिर्फ फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स में है, मतलब ये नेचर रिपीट हो रहा है बार बार एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब ये सारी क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है. दीज आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वी आर इंटरेस्टेड इन. अब जस्ट इमेजिन कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स एक साथ मैंने समझ लिए. एक नहीं, 5 एलिमेंट एक साथ. आई अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट देम, व्हाटएवर इज कॉमन इन देम. सो इट्स सो इजी to classify and understand elements. So if they ask the properties of potassium, you know, you can also remember sodium, you can also remember francium and so on. So easy. Periodic table makes your life easy in with respect to chemistry and elements. ठीक है? So that is just one example. चल, और एक property, they react with water to form metal hydroxides and hydrogen. All these elements have one electron in their outermost shell and so they have similar properties. उनकी सिमिलर, किसको? They react vigorously. They are very reactive. They react vigorously. They produce a lot of heat. Maybe so much heat. Sorry?
मेटल कैन कट एन आइस, या सो ठीक है, कर सकते हैं। मेटल से आइस कट के क्या करना है आपने को? नहीं नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज that all of them have similar properties because of one thing and one thing only, because all of them have one electron in their outermost shell. तुम्हें कुछ क्लिक नहीं हो रहा? ग्रुप नंबर क्या है? आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हो रहा है कुछ क्लिक हो रहा है? ट्यूबलाइट जल रही है कि नहीं? ग्रुप नंबर 1 है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी कितनी है? 1 प्लस। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नहीं नहीं, बट इसको समझ लो और इसको रिलेट करो आगे भी। ग्रुप नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, इस ये थोड़ा सा चेंज होगा आगे जाके, बट अभी के लिए तो इनफ है। यू कैन रिमेंबर दिस, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट। अच्छा, पीरियोडिक टेबल दिख रहा है सबको? Can you see some Roman numerals written below the actual numbers in red in your book? Can you see them? Roman numerals? Can you see that? Yeah, so remember that is actually the number which will be very useful to us. ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ। Sorry? नहीं, I cannot. Because this is a PDF inserted as a printout. In this program there is no, means ऐसे फोटोज को रोटेट करने का कोई तरीका नहीं है। मे बी आई कैन ट्राई वंस। नहीं, there is no option. Yeah, so I just want you to locate group 13. Do you see group 13? ग्रुप 13 में सबसे टॉप में कौन सा एलिमेंट? बोरॉन के नीचे कौन है? मतलब ये ग्रुप 13 है, राइट? अब ग्रुप 13 को भूल जाओ। ग्रुप 13 के नीचे रेड में रोमन न्यूमरल क्या लिखा है? 3a. यू सी 3a? वैलेंसी नहीं है वो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। that two are very much different. Now tell me, just see that Roman numeral, you said 3a, so 3 is the number which we got. How many electrons are there in the outer shell of boron and aluminium? 3. Has to be, you understood the idea? ये जो रोमन न्यूमरल लिखे हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे हैं, they represent the number of electrons present in the outermost shell which actually govern the properties of these elements. अगर ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी समझनी है तुमको तो वो रोमन न्यूमरल देखो। अगर रोमन न्यूमरल 1 2 3 है तो मतलब ये मेटल है। 4 है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, मेटलॉइड हो सकता है। और अगर 4 से बड़ा है मतलब 5 6 या 7 है रोमन न्यूमरल, मतलब ये नॉन मेटल है। और अगर 8 है, 8 नहीं है, इसमें 0 लिखा है, 8 नहीं लिखा है, 0 लिखा है, मतलब वो नोबल गैस, इनर्ट गैस। अब समझ में आ गया? ठीक है, ग्रुप नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली दिस पार्ट। ग्रुप नंबर signifies the number of valence electrons, not valency. Valency is something different. Can anyone tell me the definition of valency? The number of electrons moved or Loosed. दुर्वा, इसके साथ ना स्केल लेके बैठने, इसके साथ। हाँ, और कभी भी ऐसा ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है ना, फटका देना उसको एक, क्योंकि इसको चाहिए ये, नहीं तो ना तुम्हारे, समझो यार, मतलब लूज्ड कैसा लगता है? लूज्ड बहुत जरूरी है उसको, आउट ऑफ वे जाके ना थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। वो क्या कर रहा है, इज अ टेक्स्ट बुक वॉर्म, मत बनो ऐसा, इससे लूज हो जाएगा। लूज बहुत जरूरी उसका, तुम उसका ये देखो, द कमांड ऑन द एक्सप्रेसिव कमांड विच शी हैज अबाउट एनीथिंग,
उसका वोकेबलरी का रेंज देखो, एंड दैट इज बिकॉज शी गोज आउट ऑफ द वे to get more idea and information about topics. Don't stick to textbook, they'll not do any good to you. इंफॉर्मेशन ये है ना जो हम लोग सीख रहे हैं वो सही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी सीखना है, अपने को सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, लूज्ड नहीं होता है, लॉस्ट होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल. कंप्लीट मतलब कंप्लीटली फिल्ड, और उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट करने हैं वो ही वैलेंसी होती है. तो वैलेंसी अलग है कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है. what we are focused on is number of valence electron, then we will talk about valency. तो हर एक ग्रुप में, अच्छा और एक चीज, every group has same number of valence electrons in the outermost shell, right? Every group, like group 1 1 electron in the outermost shell, group 2 2 electrons in the outermost shell. ये हमको समझ में आ गया. Also understand, because the number of valence electron in the outermost shell for all the elements in one group are same, that's why they will have same valency also. Valency क्या है उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ. I am saying that if the number of electrons are same in the outermost shell, that means they will have same valency. If they will have same valency, then they will have same chemical properties. All those properties which we studied: good reducing agent, unipositive ions, soft metals, very reactive, impart color to flames, form hydrides, basic oxides, everything, they are the chemical properties due to the same valence electron and the same valency. So it's very easy how you will study periodic table group wise. पीरियड में तो सब गड़बड़ है. पीरियड में अगर तुम देखोगे अक्रॉस अ पीरियड एवरीथिंग चेंजेस. जैसे थर्ड पीरियड देख सकते हो तुम. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड? उसके बाद एल्यूमिनियम, के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. शुरू कहाँ से किया था? सोडियम जो मेटल है, धीरे धीरे गए हम लोग नॉन मेटल की तरफ, और फिर आ गया नोबल गैस. Across a period all the properties changes because everything changes. The electronic configuration changes, number of electrons in the outermost shell changes, valency changes, chemical properties changes. Across a period everything changes gradually. Down the group nothing changes. Down the group there are similarities, there is periodicity. Across a group there is continuous change, gradual change. अभी समझ में आया how to study periodic table? If you want to find similarities, where you will find? Across a group or across a period or down the group? Down the group. Similarities can be found down the group. Periodicities can be found down the group. Change, gradual change can be found across a period. Across a period, down the group. Remember. ठीक है? Cause भी समझ में आ गई. सर यहाँ पे हाइड्रोजन को जो कलर दिया है, that matching with the number है? No. No. Hydrogen has a very disputed position. So it's only one element. We can always treat it separately. Although it is placed in one group, first group 1A, it has valency and chemical nature similar to those of the elements in the first group. Although there are some differences because it's a gas and a non-metal. So it has to be treated separately. उसको सेपरेट ट्रीटमेंट देना, उसके बारे में उसको कहीं पे डालने की कोई कोशिश नहीं करना कभी भी. ठीक है? क्या हाइड्रोजन इज लाइक दैट? या इन सम एस्पेक्ट्स इट कैन बी, इन सम अदर एस्पेक्ट्स इट इज डिफरेंट. सो लेट अस नॉट इंक्लूड इट एनीवे. हाँ, व्हाट वाज योर डाउट? मेरा डाउट नीचे होता है. Yes, cause of periodicity reactions similar. You can explain it now. Cause of periodicity recurrence. Is, not in. Is reoccurrence. Okay, reoccurrence of similar electronic configuration. यही तो पढ़ा अभी हमने. हाँ, periodicity is the repetition of the electronic configuration of the elements. No, periodicity is due to the repetition of similar electronic configuration in the periodic table.
Due to similar electronic configuration, the similar properties occur or reoccur in the periodic table. Okay. You want to see the like how are the electronic configuration they reoccur. Just write how do I show you this. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम मुझे बताओ सबसे पहले कौन है, लिथियम है ना, Yes, sir. उसके नीचे, Sodium. उसके नीचे, Potassium. उसके नीचे Rb, उसके नीचे सीजियम, दैट्स इट. ओके, लिथियम का हाँ Francium. फ्रांसियम भी है, अच्छा Fr. ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3. 11. उसके बाद 37. ओके, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो है 2-1, सोडियम का है 2-8-1, पोटेशियम का है 2-8-8-1, ये जो भी है 2-8 18-8-1 या कुछ ना कुछ, I'm not sure about that, but every element in the first group will have no, not 2, that is not important, 1. Every element in the outermost shell will have 1 electron in the first group. Down the group you will see this similarity, and this is the cause of periodicity. यही है कॉज पीरियोडिसिटी का, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यही तो है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. You understand, similar electronic configuration means the last shell, the number of electrons in the last shell, which are 1 throughout in the group 1. Okay. Now you understand that cause of periodicity. सर एक और डाउट था बोलो. कि अगर आउटर मोस्ट शेल में वैसे तो 8 होनी चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स अगर किसी के 5 होंगे तो he will not give 5 or he take 3 from the element. Yes. तो वैसे if the number is smaller than 4 it will give, and the number is smaller bigger than 4 It will gain. Yeah. So what is the number is for? Anything can They will share. Sharing, that is covalent bond. They will form covalent compounds. If one has 4 and one has 6, the one will give 1 to him and they will have 5. No, that's again कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोग समझेंगे अलग से, बिकॉज उसमें 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इन क्लास 10th योर सेकेंड चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग. ये सारी चीजें वहां पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस होती है, ठीक है. सो विल सी दैट टाइम, देख लेंगे उसको. बट ओनली थिंग इज शेयरिंग होता है इफ देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे शेयरिंग कब होता है, तुम कब, when do you share something with your friend? When you have something to share, also when you want something. I don't want this pen, will I share it with you or will I just give it away to you? Share. No, I will give it away to you. I will donate it to you. I don't want it, man. नहीं share करना है मेरे. Of course कुछ तो लोग हैं ना ऐसे थोड़ी. You don't understand donation, do you? You understand donation? Donation क्या होता है? Giving away. मैं अगर मेरे कपड़े डोनेट करता हूँ किसी गरीब को, मैं उसके पास जाके पूछूंगा क्या, मेरे को दे, वापस पहनना है मेरे को. मैं अगर मेरे फ्रेंड के साथ टी शर्ट शेयर कर रहा हूँ, शेयर कब करूंगा, जब मुझे भी चाहिए वो. When I want something, I will share. Who wants electrons? Metals or non-metals? Non-metals. मेटल के तो उसको तो देना है, उसके पास तो एक्स्ट्रा है. Metals will always donate, will never share. Non-metals can do 2 things. Either they can gain. अच्छा, तेरे फ्रेंड को तेरा टी शर्ट अच्छा लगा, अगर तू उसको दे देगा, डोनेट कर देगा, वो खुश हो जाएगा. तू शेयर करेगा तभी भी वो खुश हो जाएगा. मतलब नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग एंड शेयरिंग बोथ. हु डज गेनिंग एंड शेयरिंग? नॉन मेटल्स. 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब शेयरिंग भी पॉसिबल है, गेनिंग भी पॉसिबल है. 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो भी, मैं बोल रहा हूं फिर भी समझ लो, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में. कार्बन गेन भी करता है और शेयर भी करता है. कार्बाइड बनाता है वो,
बट ये सब ना इतना सिंपल जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसा नहीं है। ये केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि इट हैपेंस ओनली इन सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशन बहुत जरूरी है, एंड दोज कंडीशंस विल बी रिवील्ड टू यू in due time. When you go in higher standards and study chemistry, you will understand कि इसी कंडीशन में ये होता है, ठीक है। सो अभी तो सिर्फ एक जनरल रूल समझ लो जो मैंने तुम्हें बताया, शेयरिंग एंड गेनिंग इज possible for only elements which only for those elements which have 4 or more than 4 electrons in their outermost shell, that is non-metals. Sharing and gaining non-metals, Giving away metals. donating or giving away, losing is for metals. That's it. Clear? अब clear हो गया? चलो great. Okay. अच्छा, और एक चीज बता दूं, पीरियोडिक टेबल सामने है, एलिमेंट नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजन, 20, कैल्शियम। बस ये तुम्हारी लिमिट है, उससे आगे के क्वेश्चन पूछना भी मत, उसके बारे में सोचना भी मत। जब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉपर सल्फेट या फिर आयन क्लोराइड कुछ आता है तो उसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, उसकी वेरिएबल वैलेंसी या इतना अगर नॉलेज है तो हम लोग डील कर सकते हैं। बट इफ यू लाइक वांट टू गेट इन डीपर टूवर्ड्स दोज एलिमेंट्स जो मिडल में दिख रहे हैं तुम्हें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इफ यू वांट टू गो डीपर इनटू देम तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 साल। फिर अगर 11th-12th में फिजिक्स सॉरी साइंस लिया तुमने तो यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन सेपरेटली। Durva, you're studying P block, S block, something, everything separately. Are you studying P block, S block? है ना तुम लोग को अलग से है ना कि एक वो P block, S block, can you see P block, S block? पूरा चैप्टर है P block. P block पे पूरा एक टॉपिक है, S block पे पूरा टॉपिक है कि नहीं? So you will study in due time. You understand? अभी के लिए क्या फोकस करना है? 1 to 20. 1 to 20 मतलब एटॉमिक नंबर 1 क्या है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम। 1 to 20 के बीच में कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन में, कौन से ग्रुप में, किस पीरियड में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक मास क्या है, सब पता होना चाहिए, तो ही देन ओनली यू कैन से एवरीथिंग। हाँ एग्जैक्टली, मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करते हो ना, इसको भी करना। सो क्या होगा पता है, घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन देगा ना, तुम देखोगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर, दैट इज द आइडिया, ठीक है। Okay. So I'm not going through this types of elements and periods में short period क्या है, very short, sorry shortest, short, long and longest, ये period कौन से होते हैं मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है। We are trying to understand something more conceptual, not just information based. बट तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, जैसे तुमने पूछा एंड द आंसर इज नाउ क्लियर टू यू। कुछ और ऐसा है तो पूछ सकते हो, आई विल डायरेक्टली गो टू द थिंग्स विच आर रियली टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ बिफोर वी गो अहेड। अच्छा, एक चीज मुझे बतानी है तुमको ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में, है ना, इसको याद रखना है बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको यू टेंड टू फॉरगेट दिस, ठीक है। सो ब्रिज एलिमेंट्स को लर्न करना है। ब्रिज एलिमेंट्स होते क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड विच शो रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द थर्ड पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल सामने रखा है, पीरियोडिक टेबल ही देखो तुम, बाकी सब मैं बताता हूँ और तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दिख ही रहा है, तो पीरियोडिक टेबल ही देखो सिर्फ। डू यू सी इन पीरियड नंबर 2 lithium, and do you see in period number 3 next group magnesium? Yes. Do you see both of them, lithium, magnesium? Are they having this kind of diagonal position with respect to each other? Yeah, so these are bridge elements. They show a diagonal relationship. Diagonal relationship means they show certain similarity in property. They show बस उतना ही है, उतना ही दिखता है। और वैसे भी अपने को कहाँ तक पढ़ना है, बस फिर इतना ही ना, है ना। आई नो यू गेट एंशियस एंड क्यूरियस कि मेरे को जानना है क्या होता है आगे, सस्पेंस, बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने क्यों मारा, ऐसा आता है ना क्वेश्चन। बट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, you will everything will be revealed in due time, and after that those things get revealed ना, तुम्हें
ऐसा लगेगा कि यार नहीं पता चला होता तो अच्छा था, ये कितना पका हुआ है यार ये। ऐसा ही है ये, इन केमिस्ट्री तो खास करके आई कैन टेल यू दैट। सो अभी इससे खुश हो जाओ तुम, बी हैप्पी के 20 तक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आगे जैसे ही वो आता है ना, इट ब्रिंग्स इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस अलोंग विद इट। So yeah, lithium, magnesium, beryllium, aluminium. Do you see beryllium, aluminium relationship? Although they are very far away from each other, beryllium, aluminium, है ना? But there is a diagonal. And boron, silicon again, they are near to each other. So ये bridge elements हैं. Typical elements. अच्छा, you know, हर क्लासरूम में एक बच्चा होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो इसको इसकी तरह बनना है। पेरेंट्स भी होता है, पेरेंट्स भी करते हैं ये। देखो शर्मा जी के बेटे को, शर्मा जी का बेटा इज अ मीम, शर्मा जी का बेटा इज अ मीम, एंड एवरी पेरेंट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ एवरी फैमिली हैज गॉट अ शर्मा जी का बेटा इन देयर लाइफ। पेरेंट्स के लिए वो आइडियल होता है और बच्चों के लिए वो दुश्मन होता है, कमीना होता है। शर्मा जी का बेटा अगर अकेला मिल गया तो मैं उसको फोड़ दूंगा रियली, क्योंकि उसके साथ कंपैरिजन होती है अपने, वी डोंट लाइक टू बी कंपेयर्ड, राइट। तो टिपिकल एलिमेंट्स है जिसके साथ सब एलिमेंट्स की कंपैरिजन होती है। ये सारे शर्मा जी के बेटे हैं, सोडियम से लेके क्लोरीन तक। दैट इज पीरियड नंबर 3। डू यू सी पीरियड 3? दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव, नो सॉरी, टिपिकल एलिमेंट्स। They summarize the properties of their respective groups and are called typical elements. उनके ग्रुप के वो लीडर्स हैं, पीरियड नंबर 3 उनके ग्रुप के लीडर्स है वो। तुम्हें perfect property of that. दे समराइज। बट तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि पीरियड 3 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं Period 3. हाँ, है, नहीं है ना, इसलिए पीरियड 3, क्योंकि जैसे ही वो ट्रांजिशन आ गया बीच वाला, तो मतलब फिर कोई लीडर के लिए फिर बहुत सारे, फिर वो इंडियन पॉलिटिक्स बन जाता, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, पता नहीं कौन सही कौन गलत, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स बना दिया, यहाँ पे कंपटीशन कम है। ओके अच्छा, दूसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है, ट्रांजिशन ब्लॉक के सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी बताया है वो लोग ने, ऐसा नहीं है। बट एक चीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज सिंस इट इज नॉट इन आवर सिलेबस एंड although it is not a topic of concern for any of us, we should know certain things about them. यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। I don't know about Virabdala, but still यहाँ पे मुझे जो लगा वो बहुत सही लगा है। All these elements are metals with high melting point boiling point. ब्लू में सबका कलर भी सेम है, देख रहे हो, सबका कलर सेम। ये कलर कोडिंग भी बहुत ही सोच समझ के दी है, ऊपर तुम्हें चार्ट में लिखा भी है कलर के बारे में क्या है ना। Yes, they are all good conductors of heat and electricity. Some of these elements are attracted towards a magnet. Most of these elements are used as catalysts. Most of these elements exhibit variable valencies. Variable valency वाले जितने भी तुम देखोगे valency chart में, सब इधर से transition से belong करते हैं। Most of these elements form colored ions and colored compounds. You are going to learn this in class 10th in a chapter called Analytical Chemistry. इन लोगों ने आयंस के भी कलर दिए। Yes. लाजमी नहीं होगा ना, नहीं नहीं, माइक्रोस्कोपिक। आयंस के कलर मतलब आयंस जो कंपाउंड बनाते हैं, उधर भी तो वो कलर दिखेंगे। एक आयन अगर कलरफुल है तो 1 मिलियन आयंस कलरफुल नहीं होंगे, होंगे, तो वो तो दिखता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट visible changes around us, so it does not involve any complications, but it involves like those very in-depth analytical skills of remembering the information, and that's very chemical people are very finicky. They are concerned with very small details, minute details, and they take data and make tables and बहुत ज्यादा वो लोग ये होता है। सर आपने ब्लू बॉटल एक्सपेरिमेंट किया?
सॉरी, ब्लू बॉटल एक्सपेरिमेंट, ब्लू बॉटल, ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देखा है। ब्लू बॉटल एक्सपेरिमेंट में दे हैव अ हम्म, ट्यूब, दे हैव अ कंटेनर, उसमें पानी रखा होता है, तो पहले उसको शेक कर स्टीयर करते हैं, ओके फिर वो ब्लू हो जाता है। ओके, Then again they keep it for 2-3 hours or more than 2-3 hours, then it again turns transparent. मे बी सेटल डाउन होता होगा। It is now like नीचे में नहीं जाता। ओह, दैट्स वेरी यूनिक। मेरे को भेजना कुछ लिंक है तो। बट आई एम गोइंग टू टीच यू ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट ईयर। निकलता है। अरे बहुत मस्त है, बहुत धमाल चीज है, ब्लू एंड रेड फाउंटेन दोनों में। you'll understand नेक्स्ट ईयर। अच्छा, दो चीजें और, मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, डिफेक्ट्स मतलब एनामलीज, डिसएडवांटेजेस। ये याद रखना है तुमको क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। Modern periodic table is based on atomic number, which is an even better fundamental property compared with atomic mass. किसकी बात कर रहे हैं? मेंडेलीव की। उसने एटॉमिक मास के ऊपर बनाया था ना। मोजले ने क्या किया? एटॉमिक नंबर कर दिया, which is better. So it's a good thing. Merit. Position of an element in the table is related to its electronic configuration. क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. It shows regular changes in properties of elements on moving across a period and down the periodicity of properties. Cause of periodicity हमने already discuss कर लिया. And fourth and the last one, modern periodic table is easier to remember, understand and reproduce. Reproduce मतलब recreate करना. Recreate कर सकते हो ना, एक बार तुमने समझ लिया ये है. Can you recreate in your book? Yeah, of course. So it's very easy. They have designed it like that it's very easy to remember, understand and reproduce. Defects, problem क्या है? Position of hydrogen is still not satisfactory. You keep on asking me question, even I don't know the question, even they don't know the answer to that question. हाइड्रोजन क्यों है यहाँ पर? नहीं पता यार क्यों है. Instead it is the first element stored. उसकी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बाकी कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं है. हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन का प्रॉब्लम. एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ, yeah, because you know in real life also some people are misfits. Misfits पता है? misfit जो फिट नहीं होते हैं तुम्हारे सोसाइटी के डेफिनेशंस के साथ, जो थोड़े अलग हटके होते हैं. हाइड्रोजन वैसे ही है, हटके. वो फिट नहीं होना चाहता तो नहीं होगा फिट. क्या करना है? ठीक है ना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो. मिसफिट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए. They are very different people. They think very different, but they are harmless. They don't do any harm by. But people see it as a danger. खास करके सोसाइटी मिसफिट्स को डेंजर समझता है कि ये हमारे जैसा नहीं है. नहीं नहीं, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अलग होते हैं वो थोड़े. वो अपनी नॉर्मल सोसाइटी में फ्लैट लेने आते हैं, तो सोसाइटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, इसको मत दो यहाँ पे रेंट में, ये खराब करेगा माहौल. जबकि वो कुछ खराब आदमी नहीं है, थोड़ा अलग हो सकता है हमसे. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल, मैं खुल के बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी वी ऑल अंडरस्टैंड दोज आर मिसफिट्स. तो हाइड्रोजन वैसे ही मिसफिट है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसकी पोजीशन को लेके डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं. अपने को उसको एक्सेप्ट करना है कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, दैट्स इट. है ना? फ्यूचर में कभी हो जाएगी तो हो जाएगी, ठीक है. बट बोथ ग्रुप 1 and 17 कैन हाउस हाइड्रोजन एज देयर फर्स्ट एलिमेंट. It fails to accommodate the inner transition elements, that is lanthanides and actinides, into the main body of the periodic table. Do you see that? नीचे दो अलग से रोज दी है. Do you see that? Adjustment बोल सकते हैं. It's kind of an adjustment. हाँ. To fit, to make it print friendly and to print it on a single page, they've made this kind of adjustment. सर सीरीज मतलब क्या कि उसी लैंथेनियम के जैसे ही प्रॉपर्टीज होने वाले एलिमेंट सारे बने? नहीं, लैंथेनम के आगे जो एलिमेंट्स आने चाहिए और जो उसमें फिट होने चाहिए वो नीचे डाल दिए हैं उन्होंने. दे मेड अ कट इन द पीरियोडिक टेबल. क्योंकि लैंथेनम से शुरू होता है और कुछ नहीं, और एक्टिनियम से शुरू होते हैं तो एक्टिनाइड्स. दैट्स द ओनली थिंग.
सर इसमें से कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए लेकिन तब भी है बस ऐसे डिस्कवर नहीं है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचुरली अकर नहीं करते हैं लेकिन लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए क्योंकि हैं। यहाँ पे अगर एक्टिनाइट सीरीज देखते हैं तो उसमें नेपट्यूनियम से लेके लॉरेंशियम तक उन्होंने बताया नहीं ये सॉलिड है लिक्विड है या गैस। बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी पे अभी भी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, एंड दे मे बी लेबोरेटरी क्रिएटेड, दे आर नॉट नेचुरली अकर। और सर जब वीडियो मैंने देखा वीडियो में 118th एलिमेंट का नाम कुछ और लिखा था यहाँ पे सब So that's a change, new change. That some updates they have created, they have made. So ये अपडेट होता रहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC. They make these kind of changes on a regular basis. Whenever they feel like कि हाँ ये ज़रूरी है वो कर देते हैं. So ये changes तुम्हारी बुक के authors और publications they apply. That's why the editions, new edition, iPhone Ultra Pro Max Plus, वो तो बकवास है, कुछ भी डाल के नया बना अपडेट्स। वैसे ही यहाँ पे भी अल्ट्रा प्रो मैक्स बुक होगी तुम्हारी शायद, मेरी वाली नॉर्मल है, पुरानी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। किसमें? अच्छा हाँ, ओके हाँ हाँ, वही होगा जो मैंने वीडियो में बनाया, उबुंटू जो भी है, उन ओके। Prajakta, all okay? Prajakta, I am doing conversation here with them on the topic. Are you able to listen to me, everything, understand everything? If you have any question, ask freely. Yeah. Okay, merits, demerits हो गए। अच्छा, जनरल ट्रेंड्स, अब ये भी जान लो, ये भी मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले ग्रुप वाइज ट्रेंड दिया है, नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। If you go down the group, the number of shell increases by 1. जैसे हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 17 दिया है यहाँ पे। सो फ्लोरीन में 2 शेल है, क्लोरीन में 3 है, ब्रोमीन में 4 है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। कैन यू सी दैट नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1? व्हाट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन? दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर द सेम, they are the same. So number of shell increases by 1 down the group and valence electron, हाँ मैंने वीडियो में भी बनाया, they remain the same. ये सब तुम्हें लर्न करना है। वैलेंसी, what about valency down the group? Remains the same because number of valence electron remains the same. Now you know it. Properties of elements, they are similar. Properties are similar because valencies are similar. हाँ, physical property might, properties नहीं बताया था मैंने, या reactivity मैंने बताया। Reactivity increases down the group. Why? Can anyone can हाँ, for metals why the reactivity increases? Electron lose करना है, so down the group easily lose क्यों होता है? नहीं, but down the group increase होता है। Why? For losing electron, what has to happen? Yeah. उसके ऊपर कोई फोर्स है क्या? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई उसको अट्रैक्ट करके रख रहा है आउटर मोस्ट शेल में? शेल कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन क्यों है आउटर मोस्ट शेल में? किसने उसको पकड़ के रखा है? न्यूक्लियस? नो नो नो, लिसन टू मी। प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, यू कैन नॉट गो, ठीक है। बट इफ दैट आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन गोज लिटिल फार्दर इन द आउटर, मोर आउटर ऑर्बिट, क्या होगा? ये जो पुल है ना, पुल, वो वीक हो जाएगा because the number of shells increases. So as you go down the group, number of shell keeps on increasing, and that's why the number of electrons present in the outermost shell have less and less pull towards the nucleus. अगर attraction कम होगा तो easy होगा ना lose करना electron, and that's why it is easier to lose electron, more easier for a metal to lose electron, more reactive the metal becomes.
बिकॉज वो जल्दी आयंस बना लेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सो इसके लिए मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। As you go down the group for non-metals, it becomes less and less reactive because they have to gain electron, and for gaining electron the force should be greater, but for the atoms which are below in the periodic table the force is not greater because it's far away na, from the nucleus. ये बात है। Because the atomic size increases, that's why एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, पुल कम होगा, एंड वो जो पुल कम होता है इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। या एटॉमिक साइज का क्या होता है डाउन द ग्रुप? इट इंक्रीजेस। व्हाई डज इट इंक्रीज? सिंपल लॉजिक, व्हाई डज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सिंपल, और कोई रीजन नहीं है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर increases because pull is less, so they will form ions easily, that's why more metallic है. They will donate easily, more metallic character increases. What about non-metallic character? Decreases down the group. Non-metals will lose ion with difficulty. So metals also have non-metallic character. Non-metal have non-metallic character, metals have metallic character. Metals के लिए बोल रहा हूँ metallic character increases down the group, non-metals के लिए non-metallic character decreases down the group. Shrink होता है, size increase होता है, but it is difficult to gain electron as you go down the group for non-metals. पुल कम होता है, इसलिए non-metallic character decrease होता है. Periods, एक across a period, third period को ध्यान में रखो, across a period, number of shells, what happens to the number of shells? Across a period, left to right, third period, sodium से chlorine तक, how many shells are there? 3 throughout. Do they change? No. So number of shell remains the same across a period, does not change. ये throughout पूरे periodic table के लिए. अच्छा, number of electrons in the valence shell across a period. Third period देख लो, increases by 1. Number of electrons in the outermost shell increases by 1. Valency changes. How does it change? First the valency increases, becomes maximum, then it decreases and becomes 0. Valency increase क्यों होता है? क्योंकि वो number of electrons change हो रहे हैं. After it crosses 4, the elements become non-metallic and they can either share or gain. So the valency will again decrease. Valency will first increase, then decrease and finally become 0. मैंने बोला था ये वीडियो में, बहुत अच्छे से बोला. Okay, next, size of atom across a period. This is crazy. It shows here. Atom छोटे हो जाते हैं. अरे धानी मेरे को बता, नंबर ऑफ शेल सब में सेम है? 3 है, सब में 3 है. देख तू ध्यान से. आई थिंक ये सेकंड वाला पीरियड है, सब में 2 है नंबर ऑफ शेल्स, है ना? बट साइज छोटी क्यों हो रही है? शेल इंक्रीज नहीं हो रहे तो साइज छोटी क्यों हो रही है? सेम रहेगी तो भी समझ में आता है. व्हाई दे आर श्रिंकिंग? मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में. होता है यार, होता है. आई एम नॉट ब्लेमिंग यू. क्यों भूल गया? दिमाग है यार, ह्यूमन माइंड भूलने के लिए बना है, और तुम मशीन थोड़ी हो. लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशंस, मेरा नहीं है, ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है तुमसे कि तुम्हें याद रखनी है चीज़ें, और ऐसी चीज़ें खास करके. आई विल गिव यू रीजन, रिमेंबर इट. ओके, डू नॉट फॉरगेट. आई विल गिव यू द रीजन. ओके, आई जस्ट वांट सम आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 3 है. प्रोटॉन कितने? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन को खींच रहे हैं। आगे बढ़ोगे 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। कौन हैवी है, कौन मैसिव है? नहीं, कौन हैवी होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन इज हैवी, प्रोटॉन इज पावरफुल, प्रोटॉन इज पुलिंग। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इंक्रीज हो रहे हैं, आर दे सिचुएटेड इन थर्ड फोर्थ शेल और दे आर ऑल इन सेकंड शेल ओनली? They are only second shell only. Means the distance of all those electrons which are increasing one by one in the same period are not different. They are all at the same distance from the nucleus, but the number of protons is increasing. So the pull towards the electrons in the valence shell will increase, and they will be pulled with more force. You understand now? सेकेंड शेल ही है ना, सेकेंड शेल पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स होगा एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई द एटम बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। अभी समझ में आया लॉजिक इसके पीछे? तू इतना इधर तो ध्यान देती है ना लड़की, तू घर पे कोई और ही दुनिया में होती है। तू इधर मेरे को लग रहा है तू समझ रही है, घर पे तेरी कुछ और ही दुनिया है। बेटा ये मत कर, बिकॉज अपने को वापस ऑनलाइन जाना है। और मैं तेरे को बताता हूँ इसका रीजन क्यों। ये पेंडेमिक अगर तेरे को लगता है ये खत्म हो जाएगा, अगले साल हम स्कूल जाएंगे, भूल जाओ। किसी को इसका एंड नहीं पता है, ये सब गैस कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ अगर तुम सबको नहीं पता है तो। अ लेडी 66 years old, डबल वैक्सीनेटेड, फुल वैक्सीनेटेड, गॉट ये डेल्टा प्लस, शी डाइड। डबल वैक्सीनेटेड लेडी डाइड। यू अंडरस्टैंड? वैक्सीनेशन का रीच के बाहर जाएगा ये मामला। अपने को ऑनलाइन को वी नीड, इफ यू वांट टू सर्वाइव वी नीड टू एक्सेप्ट ऑनलाइन, वी नीड टू वर्क, वी नीड टू लर्न टू वर्क ऑनलाइन इफेक्टिवली। ऑनलाइन बैठ के भी तुम अगर अपने ख्यालों की दुनिया में हो, इट्स योर लॉस। तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है ना तुम लूज कर रहे हो। ऐसा ही डिस्कशन मैं ऑनलाइन भी करता हूँ। ये बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, बट मुझे चाहिए कि what experience we are having right now, we should just replicate it online. We should not be out of sync or in some other world. तो तू अभी जो ध्यान दे रही, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, पहली बार लग रहा है कि धानी को पढ़ा हूँ it, and I'm feeling like it's worth it. But we cannot continue this for long. We have to go back online when cases rise, and they will rise. ठीक है, फिर आप आएंगे वापस ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन, ये होता रहे। बट यू पे अटेंशन, तुम्हारा लर्निंग नहीं रोकना चाहिए यार इसकी वजह से। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? जो मेरे को तेरे को डांटने का और तेरे को बातें सुनाने का एक ही मोटिव है। मैं किसी को भी जानबूझ के नहीं डांटता हूँ, उसके पीछे रीजन होता है। अगर मैं तुम्हें कुछ 4 बात सुना दूंगा ना, तो क्योंकि मुझे वो दर्द हो रहा है कि तुम क्यों नहीं सीख रहे हो यार। व्हेन आई एम गिविंग यू ऑल द अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट डूइंग इट। एंड दिस, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इतना डिस्कशन, ये तुम वीडियो देख के आए हो ना, इसलिए पॉसिबल है, बिकॉज यू नो द बेसिक्स ना। अब मैं आगे तुमसे बात कर सकता हूँ, एंड आई कैन डिस्कस दोज थिंग्स। मुझे पता है उसमें तुम्हें प्रॉब्लम। इफ आई स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम जीरो ना, यू विल बी बोर्ड टू डेथ। इसलिए मैंने 2 सेशंस को अलग किया है, तो यू कैन हैव द एक्सेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइव लेक्चर, कि उसमें तुम्हें मजा आएगा। डिस्कशन हुआ, मेरे को समझ में आया, अच्छा था, बिकॉज यू नो दैट यू नो द बेसिक्स। एक्चुअली ये जो बेसिक क्लियर करने का काम स्कूल का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ, एंड दैट टू नॉट टू सेटिस्फैक्टरी। या सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमको पूरा काम करना है ना, वी हैव टू डिवाइड इट, इसको बाइफरकेट करना ही पड़ेगा। वीडियो लेक्चर्स, लाइव सेशंस, you understand, it will become effective and you will find yourself ahead of the herd which are struggling. Let's actually make it happen, guys. We have the power to do that. You agree? ठीक है, enough of the prep talk, let's get back to the original idea. Properties of elements. Okay, properties of elements.
if I go across a period from left to right, first I will encounter metals, metallic properties. Slowly I will move towards metalloids and then to non-metals and finally noble gases. So properties also changes accordingly. That is due to the change in valency. Metallic character of course decreases as I move across a period. Non-metallic character increases as I move across a period. Nature of oxides. See, metallic elements they form basic oxides. ठीक है. सो नेचर ऑफ ऑक्साइड में मैं एक ही चीज बोलूंगा, ऑल्दो इट इज नॉट, मतलब थोड़ा सा अलग है ये चीज क्लास 9th के हिसाब से. 10th में ये वापस रिपीट होगा. यू ऑल नो दैट 10th में यही सेम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का. फर्स्ट चैप्टर इज द सेम चैप्टर. नाउ जस्ट इमेजिन टुडे यू आर डूइंग इट. 10th में क्या होगा? सिर्फ रिविजन होगा. यू नो इट ऑलरेडी, यू आर रेडी फॉर बोर्ड एग्जाम्स. दैट इज द बेनिफिट, टेक इट राइट नाउ. क्योंकि नेक्स्ट ईयर नए बच्चे आएंगे, पक्का आएंगे, तो उनको लगना चाहिए कि यार वी मिस्ड इट. क्योंकि यू शुड एक्चुअली शो देम दैट यू आर अहेड, यू नो इट ऑलरेडी. इसलिए बोल रहा हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक slowly when you move across a period. Down the group oxide, nature of oxide will remain basic only because all are metals. But as we move across a period, the nature of oxide changes from basic to acidic. अच्छा, non-metallic oxides are acidic in nature. तो एंड में वो आते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स और मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक है. ठीक है, सो यू शुड नो दैट. सर यस. यहाँ पे एक और डाउट मुझे कि ट्रांजिशन मेटल्स आर ह्यूमरस, यहाँ पे कितने सारे सेम कलर वाले हैं, तो मींस मेटल्स आर द हाईएस्ट एलिमेंट्स इन द टेबल, लेकिन इनमें why only is aluminum the one which has the perfect properties of those kind of elements? Not perfect, you can't call it perfect, you can call it typical. Typical people. कुछ तो और होंगे इतने सारे 180. हाँ है ना, क्यों नहीं है. बट उन एल्यूमिनियम को पढ़ना इजी है ना यार ज्यादा. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टीज. ये जितने भी टिपिकल है ना, टिपिकल पीपल कैसे होता है, उनको आप समझ लो तो उनके पूरे जैसे उनके टाइप के लोगों को समझ जाते हो तो वो पर्सनालिटी है. सो टिपिकल पर्सनालिटी होती है, एल्यूमिनियम की टिपिकल पर्सनालिटी. उसकी पर्सनालिटी समझ लो, बाकी सबकी पर्सनालिटी तुम्हें समझ में आ जाएगी. सो यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट. कुछ बच्चे होते हैं ना तुम्हारी स्कूल में, तुम्हारे डिवीजन में या क्लास में, उनका ग्रुप होता है, वो सबको बॉलीवुड मूवीज पसंद है. वो सब हर एक एनुअल डे में बॉलीवुड गानों पे डांस करेंगे. यू नो दैट टिपिकल बॉलीवुड. और उसमें से एक स्टैंड आउट करता है जो उनका लीडर होता है, वो वही है. वो वही चीज करेंगे जो बाकी सब करने वाले हैं, उसको फॉलो करते हैं बाकी लोग. और उसको समझना भी इजी है. अगर उसको देख लिया ना तो समझ जाएगा इसके ग्रुप के सब बच्चे ऐसे ही होने वाले हैं. एक ग्रुप होता है जो बहुत स्टूडियस होता है, उसमें ज्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो हमेशा कुछ ऐसी बातें करेंगे स्पेस की या फिर कुछ अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं. और वो बहुत निहायती बोरिंग लोग होते हैं. चश्मा पहनने वाले, पढ़ाकू, बुक से आगे कभी नहीं देखेंगे. हाँ देखेंगे, लेकिन फिर वो कुछ अजीब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, बहुत ही और सीरियस होते हैं वो बिल्कुल. उनमें फन, ह्यूमर, स्पोर्टीनेस कुछ नहीं होता. एक ग्रुप होता है ऑलराउंडर बच्चों का जो सब करते हैं, जैसे क्रिश. जैसे क्रिश तो वो स्पोर्ट्स भी खेलेगा, वो पढ़ाई में भी अच्छा है. इनफैक्ट वो शर्मा जी का बेटा बनने के कंटेंडर में है. सो मे भी हो सकता है क्रिश के सोसाइटी में या फिर फैमिली फ्रेंड्स या फिर उसके जो क्लोज फ्रेंड्स है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं देखो क्रिश को कितना अच्छा बात करता है, सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता है, बनो उसके जैसा. क्या कर रहे हो तुम, है कि नहीं? देते हैं, मैं बोल रहा हूँ यार, है तू मस्त है रे, तू ऐसे ही रहना. आई हैव टू टीच माई चाइल्ड यार, मेरे को भी बताना पड़ता है उसको कि अभी वो अंकल आने वाला है, क्या बोलोगे तुम, हाउ आर यू, उसके बाद तुम हाउ आर यू का आंसर कैसे करोगे, देन हाउ यू विल रिप्लाई. वी हैव टू टीच एंड यू हैव बीन टॉट इन द राइट वे. सही है, वो मानना पड़ेगा ये बात. ठीक है.
So see, we come to this end of this part. There is one more part, that is study of some specific groups. जैसे ग्रुप 1 है तो वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक. ग्रुप 2 है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है बेरिलियम से लेके रेडॉन नहीं है, आर ए क्या है रे, रेडियम तक. रेडियम है ना, आर ए, रेडॉन तो आर डी है, रेडियम है आर ए. 88 नंबर, ग्रुप 2 में नीचे, ग्रुप 2 में बेटा सबसे नीचे रेडियम, रेडियम है ना, वो सबकी कैरेक्टरिस्टिक दी है. फिर ग्रुप 7 हेलोजेंस है, ग्रुप 0 नोबल गैसेस है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है. एंड फिर फाइनली यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल है. दिस इज ए और बी का भी कुछ रीजन है. 7A है, बी नहीं है, बी भी है क्या? 7A है, हाँ 7B है, हाँ 7A भी है. 7A is representative elements, 7B भी है. विल फाइंड दैट आउट, मेरे को भी और आइडिया 8 में कोई साइन नहीं किया, 8 में सिर्फ नॉर्मल रहेगा, कुछ तो रहेगा इसका, समथिंग विल बी देयर. ओके ओके और ठीक. एक और यहाँ पे उन्होंने चालू किया 1A 2A, फिर 7A तक प्रॉपर है. Okay. फिर उसके बाद 1B की पोजीशन कुछ और दे दी, 2B कुछ और जगह पे 3 4 5. ठीक, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे उसको भी, बट उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स है. ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 17 हेलोजेंस एंड ग्रुप 18 लास्ट ग्रुप दैट इज नोबल गैसेस. उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है. What I want you to do is note down some questions which I am giving from 5B and 5C. You have to write the answers to those questions best to your capability. ढूंढ के लिखो, बना के लिखो, but accurate information तुम्हें maintain करना. ठीक है, so we'll note down those questions right away and get the answers, and that will be your homework for today. ठीक है, I'll stop the recording just a moment.